Hello students, today we will complete our chapter number 2, skipping shoes. Half chapter we have completed yesterday, and we read that there was a little girl. She got a pair of shiny shoes and the shoes were magical. So the shoes were forcing to the girl to complete all the work, even if she didn't want to do, if she does not want to do, still the shoes were taking work from her. So now again, yesterday I haven't given you the Hindi meanings of hard words. So today we will do this work also and we will complete the chapter also. So let's start. Once there was a girl named Kitty. Kitty is a girl in this story. She did not want to do what people asked her to. मतलब उसे वो काम नहीं करना होता था जो उसे लोग करने के लिए बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि तुम ऐसा कर लो. She never want to do. So instead का मतलब होता है बजाय. So instead she grumbled, I want and I can't. वो हमेशा शिकायत करती थी कि मुझसे नहीं होता या मैं नहीं कर सकती. Grumbled. शिकायत. So what she grumbled, I want and I can't. One day, एक दिन, she was given a pair of shiny new shoes and barely had Kitty put them on. Put them on मतलब पहनना. Put on पहनना, take off उतारना. So barely. Barely means मुश्किल, कठिनाई से, मुश्किल से. So she put on the shoes barely. बहुत मुश्किल से उसने वो शूज़ पहने. Had Kitty put them on when her mother called. और जैसे ही उसने इतने मुश्किल से वो शूज़ पहने, उसकी मम्मी ने आवाज़ लगाई. Kitty's mother called. किटी की मम्मा ने आवाज़ लगाई. Kitty run and tell the cook. जाओ और कुक को बोलो to make a pie of dinner. कि उसकी मम्मा ने बोला किटी से कि तुम जाओ और कुक यानी जो खाना बनाते हैं उसको बोलो कि वो शाम के डिनर की प्रिपरेशन करें. I don't want to went Kitty. तो as usual Kitty replied, I don't want to. मुझे नहीं करना, मुझे नहीं कहना, मुझे नहीं जाना. Like went. There is a word means कराहना, दुखी होते हुए बोलना. मुझे नहीं करना. I don't want to do like that as you do. जैसे आप भी करते हो कभी कभी. So as usual वो जैसे बोलती थी उसने बोला I don't want to do. So the shoes gave one jump. उन शूज़ की वजह से उसे एक जंप लगा. And swept मतलब घसीटते हुए या बहा कर ले जाना. डाउनस्टेयर्स नीचे की सीढ़ियों में. into the kitchen और वो शूज़ उस किटी को घसीटते हुए या बहाते हुए अपने साथ किचन में ले जाते हैं. So breathless means हाफना, सांस से फूल जाना, थक जाना. breathless
लेस। ब्रीथलेस मीन्स हाफना, बेदम हो जाना या फिर प्राणहीन हो जाना। अंडरस्टैंड? जब हम रनिंग करते हैं, भागते हैं, तो हम सांस फूल जाती है, थक जाते हैं, लाइक दैट। She gave the message and stared. Do you know? Stared means होता है एक टकी लगाकर देखना, एक टक या टकटकी लगाकर देखना। Like if any magical man will come in our school or he will start to show the magic, then how will watch him? हम उसे कैसे देखेंगे? टकटकी लगाकर ना कि वो कैसे मैजिक दिखा रहा है। सेम हियर द किट्टी वॉज वॉचिंग, स्टेयरिंग टू हर शूज़ कि ये कैसे हो गया। मैं तो नहीं चाहती थी यहाँ पे आना, ये काम करना, मैसेज देने वाला, बट मेरे से हो गया। किसकी वजह से? शूज़ की वजह से। हाउ इट्स पॉसिबल? सो the kitty stared at the shoes. Their bright buttons seemed to wink at her. ऐसे लग रहा था जैसे वो शूज़ पे बने हुए दो बटन हैं वो विंक कर रहे हैं। किस पे? किट्टी पे। Just then her father said, Kitty, go to the post office before school and get my letters. So Kitty's father ordered to Kitty that Kitty, before going school, just go to the post office and get my letters. As usual, Kitty replied, I can't. Started Kitty. जैसे ही किटी ने बोलना शुरू किया I can't, but away went the shoes. शूज़ उसे ले गए। Trotting. Here I am writing अक्षर यात्रा। We can say by force the shoes took the kitty quickly down the street. स्ट्रीट का मतलब होता है सड़क, और ज़बरदस्ती ये जो शूज़ थे वो किट्टी को रोड पे ले जाते हैं। I will take these horrid shoes off as soon as I get home. तो रास्ते में जाते हुए किट्टी बोलती है horrid. There is a word horrid. horrid भयंकर, या we can say खतरनाक। So while moving on the way, Kitty was thinking, as I will reach at home, I will take off these horrid shoes. मैं ये जो भयंकर खतरनाक वाले शूज़ है ना, जो मेरे से हर काम करवाते हैं, घर जाते ही सबसे पहले मैं इनको उतारूंगी। So as she took the letters, soon she came to a bridge. flyover. वापस लेटर लेकर के जब वो वापस आ रही थी, where she wanted to stop and watch a boat. वहाँ पे एक बोट देखने के लिए वह रुक जाती है। forgetting school and her father's letter. और ये भी भूल जाती है कि उसे स्कूल भी जाना है और उसे अपने पापा की लेटर्स भी देने हैं। बट द शूज़ वेंट ऑन वॉकिंग although, फिर भी शूज़ है उसे वहाँ से ले आते हैं। हालांकि
किटी हेल्ड ऑन द रेलिंग एज हार्ड एज सी कुड। जो फ्लाई ओवर पे जो रेलिंग से बनी होती हैं, किटी ट्राइड टू स्टॉप हरसेल्फ बाय होल्डिंग द रेलिंग बट शी कुडंट, वह नहीं कर पाई। एंड फाइनली शी गैव अप, वो हार जाती है। गैव अप का मतलब होता है हार मान लेना। शी गैव अप एंड found herself walking home swiftly. Swiftly means तेजी से। Swiftly means तेजी से, जल्दी, तेजी से चलना या फिर धीरे धीरे दौड़ना। ओके। Back home, Kitty found that as hard as she tried, जैसे वो घर पहुंचती है, she felt, उसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है, tired. She tried to take off the shoes, just would not come off. लेकिन जैसे वो घर आती है, वो शूज़ को उतारने की कोशिश करती है, बट शी couldn't off the shoes, वो उन्हें नहीं निकाल पाती है। टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड ममा फ्रॉम अपस्टेयर्स। तो ऊपर से ममा आवाज़ लगाती हैं कि इट्स टाइम फॉर स्कूल, किट्टी आपके स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बिफोर शी कुड से, वो किट्टी आई वॉन्ट, ऐसे वो बोलती इससे पहले ही, द मैजिक शूज विस्ड हर ऑफ टू स्कूल, उसे फिर से स्कूल के रास्ते तरफ ले जाते हैं। एट ब्रेक टाइम यानी लंच टाइम, अ गर्ल नॉक्ड डाउन द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स। कॉर्न कॉब्स मक्का के जो वो होता है कॉर्न, उससे उसने एक हाउस बनाया था। तो एक गर्ल वहाँ आती है, वो जैसे उसको नॉक करती है, वो कॉर्न कॉब्स का बना हुआ हाउस है वो टूट जाता है। सो द हाउस ऑफ कॉर्न कॉब्स शी हैड बिल्ट एंड मेड हर एंग्री। जैसे ही वो कॉर्न कॉब्स का हाउस नीचे गिरता है, शी गॉट एंग्री, वो उसे गुस्सा आ जाता है। किसे? किट्टी को। नाउ आई विल किक योर डाउन डॉली, बदमाश लड़की, अब मैं तुम्हें एक लात मारती हूँ। किक का मतलब होता है लात मारना। सो शी बिकेम एंगर ऑन द गर्ल, शी वॉज फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम द शूज बट शी was not able to take off the shoes, so she became anger on the girl. Up went her foot, जैसे ही उसका पैर ऊपर गया उसको किक करने के लिए, it didn't come down, वो पैर नीचे ही नहीं आया। But it didn't come down, it stayed, stay का मतलब रुकना, stayed मतलब रुक गया, in the air, हवा में, as if she were going to dance, ऐसे लग रहा था, मतलब as she took up her leg to kick the girl, वो पैर वहीं हवा में ही रुक गया और नीचे नहीं आ रहा था, और देखने वालों को लग रहा था कि वो ऊपर पैर करके से डांस कर रही है। she is making a step. The children laughed and finally she said to Dolly, और बच्चे सब हंसने लग गए, तो उसने डोली से कहा, never mind, I'll forgive you, कोई बात नहीं है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। As she said like this, जैसे उसने ऐसे बोला, then the foot went down and Kitty understood how the shoes, जैसे उसने डोली को बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, उसका पैर ऑटोमेटिकली नीचे आ गया। तो डोली को समझ में आ गया कि जब भी मैं कुछ गलत काम करूँगी तो ये शूज़ मुझे रोकेंगे, और मैं जब भी अब मैं कोई अच्छा काम करके देखती हूँ क्या होता है, क्योंकि अभी तक उसने सारे काम गलत ही किए थे, काम के लिए मना करती थी, कुछ करना नहीं चाहती थी, तो वो शूज़ है उसे ज़बरदस्ती काम करवा रहे थे। अब जब उसने उस लड़की को किक मारने का ट्राई किया तब भी वो उसे नहीं मार पाई। देन शी अंडरस्टूड हाउ इज़ द शूज़। सो गाइज, इट्स अ लॉन्ग चैप्टर,
Remaining chapter we will complete tomorrow. Thank you.